जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन टेक्निक इन मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैं बात करूंगा प्रोसीजर जो थे उसमें सेकंड स्टेप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की और मैग्नेटाइजेशन इसके तहत। मैग्नेटाइजेशन को जनरेट करने के लिए देयर आर टू वे टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। वन इज द मैग्नेटिक फ्लो और द करंट फ्लो। Magnetic flow, there is a figure is that the direction of the flow is that, and the conductive fluid is flow also in that particular direction, and the current is flowing on that particular direction. So the north and the south pole is generated, and the permanent magnet are used on that particular magnetic flow. In the current flow, we know that the direction in that particular way electric current through the specimen, electric current is flow through the specimen, and direction of the flow of electron in the opposite direction. So this is the basic to generate the magnetization in the magnetic field. There is a head shot technique. There is a equipment. This is the prod. This is a prod to supply the electric current, and this is the test piece. The electric current is supplied from that particular, the electron is moving, so that the magnetic field is created on that particular test piece. Then the magnetic field is created on that particular test piece. You have applied the magnetic media, either you use the wet particle or using the dry particle, and to inspect the defect. So हमारा ये है कि a head shoot technique, this is called the head shoot technique. But अब जो करंट अप्लाई किया जा रहा है हमारा, ये जो करंट अप्लाई करके जो हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं वो बेसिकली टू टाइप। इफ यू आर यूजिंग द एसी करंट और डीसी करंट। जब हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और करंट फ्लो मेथड इसमें कहते हैं। उसमें क्या है कि वी यूज द हेड शूट टेक्निक्स, तब हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि हमारा ये इस करंट के कारण इसके एंड पीस जो होते हैं वो हाई करंट के कारण बर्न कर जाते हैं, जिससे क्या है कि ये बर्न जब करते हैं तो हमारा यूज नहीं रह जाता, टेस्ट पीस हमारा और प्रोड हमारा खराब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोड, PROD, प्रोड। दिस इज ये हमारे होते हैं जिससे करंट जाते हैं। तो हेड शॉट में ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो वी यूजिंग द coil short technique. In coil short technique, the electric wire is used and the indicator that the test piece are inserted on that particular piece. The current is supplied on that coil, so the magnetic field is created. So this is called the magnetized and magnetic field. This is the workpiece, and suppose this is a crack, so that's why the particle is adhering on that place. So this is called the indirect magnetization. What is the skin effect? And this is the figure. This is all the magnetic field is created around that, and the workpiece is formed. So this is a longitudinal direction, and the crack is where the crack is deducted using the wet particle inspection. You have can deducted the crack. Skin effect क्या है? Skin effect is, if you suppose this is the test piece and this is a north pole and this is a south pole. ये हमारा एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और मान लीजिए यहाँ क्रैक है। तो आपको हम बता चुके यहाँ पर एक यहाँ साउथ पोल एक क्रिएट हो जाएगा और यहाँ एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो जब हमारा क्या होता है डायरेक्ट करंट में, जब हम करंट अप्लाई करते हैं तो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही हमारा क्या करता है, मैग्नेटाइज क्रिएट करता है। लेकिन जब हमने क्रैक को, यहाँ क्रैक है तो यहाँ पर भी हमारा क्या करता है, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट कर जाता है। तो हमारा फ्लक्स लीकेज ये स्टार्ट कर जाएगा, एंड दैट फ्लक्स लीकेज इज कॉल्ड इज अ स्किन इफेक्ट. This is called the spin. तो when a AC is used to induce a magnetic field in a ferromagnetic material, जब हम ferromagnetic material या टेस्ट पीस पे AC करंट को सप्लाई करते हैं तो the magnetic field will be limited to a narrow region. Narrow region मतलब वो एक क्रैक्स के आसपास, उसी नैरो रीजन के आसपास क्या करता है, हमारा सीमित हो जाता है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है. This phenomena is known as called a skin effect, and therefore it is recommended that AC be used only inspection. क्योंकि हमें क्रैक ही तो देखना है, तो AC is very useful in comparison to DC. What is the advantage?
एडवांटेज, इट इज अ क्विक एंड रिलेटिवली अनकॉम्प्लिकेटेड, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, टास्क नहीं है, बहुत जल्दी हो जाए, तो इट इज अ क्विक एंड रिलेटिवली अनकॉम्प्लिकेटेड। इट गिव इमीडिएट इंडिकेशन ऑफ डिफेक्ट। आप पे डिफेक्ट है, आपको फ्लक्स लीकेज हुआ, देन यू हैव विजुअलाइज दैट इज अ फ्लक्स इंडिकेट हो गया। और अदर टेक्निक्स में आपको क्या है कि आपका क्रैक्स तो आ गया है, जैसे आप रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन अभी पढ़ेंगे, तो वहां पे आपने क्रैक्स तो डिफेक्ट, देन यू हैव गो टू द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन में जाना है, फिल्म को डिप करके देखना है, वॉश करना है, तो इस तरह नहीं है। सेकेंड वन इज इट शो सरफेस एंड नियर सरफेस डिफेक्ट। सरफेस पे और नियर सरफेस डिफेक्ट, उसके थोड़े अंदर तक भी आप सरफेस डिफेक्ट को, मोस्ट सीरियस वंस दे कैन कंसंट्रेट, आप वो देख सकते हैं। इजी टू इंटरप्ट एंड पोर्टेबल, इजी टू, आप इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। तो लार्ज और स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जामिन एंड इट इज इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू रेडियोग्राफी। आप रेडियोग्राफी टेक्निक को जब पढ़ेंगे तो इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चीला नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? द पार्ट मस्ट बी रिलेटिवली क्लीन्ड, वही मैंने बताया, आपका क्लीन नहीं होगा तो फ्लक्स लीकेज की प्रॉब्लम होगा, इंटरप्रिटेशन रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ओनली कैन डिटेक्ट डिफेक्ट नियर द सरफेस, आपका सरफेस के नियर डिफेक्ट आपका क्रिएट होगा। एंड मोस्ट मैथड नीड टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट होगा तो दैट इज नीडेड टू सप्लाई। मैथड कैन नॉट बी यूज थिक पेंट कोटिंग इज प्रेजेंट, आपका पेंट है तो वहां पे ये प्रेजेंट नहीं होगा। सो एंड हाई करंट सोर्स इज रिक्वायर्ड, मैं पहले ही पूछ चुका हूं, हाई करंट सोर्सेज है, एंड दिस इज लिमिटेड टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये टेस्ट लिमिटेड है। एप्लीकेशन टू डिटेक्ट द पोरोसिटी, सीम, अंडरकट, हमारा जो भी हमारा क्या है कि हम डिफेक्ट यहां कौन से, पोरोसिटी पे आपके वेल डिफेक्ट, अंडरकट, सीम्स कैन बी डिटेक्टेड वेरी इजिली। क्विकली चेक निकेल, कोबाल्ट अलॉय, कास्ट आयरन, यहां इनके इजिली वे से मैं देख सकता है। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज के लिए ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। एज पर माई साइड मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्टिंग इज कंप्लीटेड। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ये वेरी टफ सिचुएशन है हम लोग के लिए, सभी के लिए। देश पूरा एक बहुत बड़ी पेंडेमिक बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, लेकिन वो इंडिया के लिए धीरे धीरे खतरनाक बनता चला जा रहा है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको किसी और टॉपिक के लिए भी वीडियो चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे मैकेनिकल के वीडियो चाहिए। थैंक यू।